الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتلقى آدم، فا کا معنی ہوتا ہے بس یا تو یا پھر، اور تلقى کہتے ہیں کسی چیز کو اچک لینا، حاصل کر لینا، لے لینا، تلقى۔ فتلقى آدم علیہ السلام نے اچک لیے یا لے لیے، حاصل کر لیے، من ربہ، من کا معنی ہوتا ہے سے، اور رب کا معنی، ویسے تو رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور لفظ یہ جو ہا ہے، یہ ہا ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اپنے رب سے آدم علیہ السلام نے اچک لیے، حاصل کر لیے، کلمات، کچھ کلمات۔ یہ جو میں نے کچھ کا ترجمہ کیا ہے، یہ دو زیر جو آئی ہوئی ہے نا، ان دو زیروں کی وجہ سے ہم نے کچھ کا ترجمہ کیا ہے۔ کوئی بھی حرف ایسا جس کے اوپر آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، تنوین آیا ہوا ہو، تو اس کا معنی ہم جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں یا تو بعض، یا پھر کچھ، یا کوئی ایک۔ یہ ان تینوں معنوں میں سے کوئی ایک معنی ہوتا ہے تنوین کا۔ تو کلمات، یہ تن، دو تا دو زیر تن ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا معنی لیا ہے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے لے لیے اپنے رب سے۔ اگر یہاں پر کلمات تا کے نیچے دو زیر کی بجائے اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رأیت الکتاب، میں نے کتاب کو دیکھا۔ اگر میں کہوں رأیت کتابن، تو اس کا معنی ہوگا کہ میں نے کوئی ایک کتاب دیکھی، لیکن جب میں الف لام لگا دوں گا شروع میں تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ میں نے کوئی ایک کتاب، یوں نہیں بولوں گا کہ کوئی ایک کتاب دیکھی، بس میں یہ بولوں گا کہ میں نے کتاب دیکھی۔ تو کچھ، بعض، یا پھر کوئی ایک، اس کا ترجمہ جو میں نکال رہا ہوں وہ تنوین سے نکال رہا ہوں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اچک لیے، حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی اس پر۔ تابہ کا معنی توبہ قبول کرنا، ویسے تو اس کا معنی آتا ہے توبہ کرنا، لیکن یہ انسان کے لیے کہ جب انسان کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو معنی ہوگا کہ توبہ کرنا، اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف چلی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا کہ توبہ قبول کی اللہ نے۔ فتاب علیہ، تو اس پر اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہو، انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہو یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی، هو التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، بہت مہربان ہیں۔ میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترجمہ بتایا تھا کہ الرحمن کا معنی ہوتا ہے سب پر مہربان، اور الرحیم کا معنی ہوتا ہے بہت مہربان۔ تو یہاں پہ الرحیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ بہت مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا، ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا، بلندی سے پستی کی طرف اتر جاؤ۔ اہبط کا معنی ہوتا ہے اترنا، جیسے ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں پھر اترتے ہیں، تو اہبط کہتے ہیں اترنے کو، یعنی بلند مقام سے پست مقام کی طرف اترنا۔ اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب۔ تفسیر میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا اصل میں تھا فَإِنْمَا، اما کے درمیان میں، یعنی الف اور میم جو ہے اس کے درمیان میں نون تھا، فَإِنْمَا کا مطلب ہے پس اگر، یأتینکم، آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور یا کا جو ضمیر ہے، یا ضمیر وہ اپنی طرف آ رہی ہے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن تبع، پس جس نے بھی پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا خوف، تو اس پر کوئی خوف نہیں، علیہم، علیہم کا مطلب ہے اس پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے، یحزنون، یحزنون یعنی کوئی غم نہیں ہے ان پر، حزن نہیں ہے ان پر، والذین، اور وہ لوگ،
कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू और झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयत को, उलाइका अस्हाबुन नार यही लोग कौन है? आग वाले हैं। नार कहते हैं आग को। इस नार से मुराद फिर हम जहन्नम भी लेते हैं कि जहन्नम वाले लोग यही हैं, लेकिन असल जो तर्जुमा है वो क्या है अस्हाबुन नार का? यही आग वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हम यही सारे के सारे लोग फीहा इस जहन्नम में खालिदून हमेशा रहेंगे। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये महसूस हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई है, जिस तरफ से अल्लाह ने मुझे मना किया था कि इस तरफ की तरफ नहीं जाना, नहीं खाना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं शैतानी वसवसे में आ गया और मैं उस तरफ चला गया और वो फल खा लिया। अब मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नादिम भी थे, शर्मिंदा भी थे, लेकिन कोई अल्फाज ऐसे थे ही नहीं कि जिनके ज़रिए से वो अल्लाह से माफ़ी तलब करते। तो जिनके ज़रिए से वो माफ़ी तलब करते वो अल्फाज थे ही नहीं, तो बड़ी कश्मकश में थे, बड़े गमगीन थे। कुछ कलिमात अल्लाह ने इल्क़ा फरमा दिए और वो अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला ने 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ में ज़िक्र फरमाए हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना हमने जुल्म किया है, अनफुसना अपनी जानों पर, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत ना की, हमें माफ़ ना किया, व तरहमना और हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन तो हम फिर खसारा ही उठाने वालों में से हो जाएंगे। उलमा फरमाते हैं कि वो अल्फाज, वो दुआएं जो अल्लाह ने मांगने से नहीं बल्कि खुद से दे दी हों। एक तो ये होता है ना कि मांगने पर मिल रहा है, एक ये है कि अल्लाह ने खुद से दे दिया है। अगर अल्लाह ने खुद से कुछ कलिमात सिखा दिए और बता दिए दुआ के तौर पर, उन अल्फाज के ज़रिए से अगर दुआ मांगी जाए तो उसके कबूल होने में फरमाया कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत उन दुआओं के जो मांग कर हमें कलिमात हासिल हुए हैं। तो मांग कर जो कलिमात हासिल हुए हैं उनके पढ़ने से भी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन बदरजा ऊला जो दुआएं कबूल होती हैं वो उन अल्फाज से होती हैं जो अल्लाह ने बिन मांगे खुद दिल में इल्क़ा कर दिया हो। तो उलमा फरमाते हैं कि ये जो दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दी थी, इस दुआ की कसरत करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए इसे बार बार, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, दिन भर में गुनाह करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं और तरह तरह के फजूल लग़वियात में रहते हैं, तो उन लग़वियात से बचने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तो ये अल्लाह ने इल्क़ा फरमा दिया कुछ कलिमात, ये जो लिखा है ना कलिमात, इन कुछ कलिमात, तो वो कुछ कलिमात ये थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इसकी मैंने आपको तफसीर बता दी, मुख्तसर तफसीर थी कि ताबा अगर इंसान की तरफ से हो, ताबा असल में था तवाबा, ता वाव और बा, तवाबा था। जब तवाबा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान की तरफ है, किसी इंसान की तरफ इसकी निस्बत हो रही है तो माना इसका होगा कि तौबा करने वाला या तौबा की उसने, और अगर यही निस्बत अल्लाह की तरफ मिल जाती है तो फिर इसका माना होता है कि वो तौबा कबूल करने वाला है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तौबा नऊज़ुबिल्लाह तौबा करने वाले नहीं हैं, वो तो तौबा को कबूल करने वाले हैं। तो जब भी अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत होगी, जब भी अल्लाह की तरफ इसकी ज़मीर जा रही होगी तो माना क्या होगा, अल्लाह तौबा कबूल करने वाले हैं। और तव्वाब, तव्वाब उससे बड़ा कोई तौबा कबूल करने वाला है ही नहीं, वही है जो सबकी तौबा कबूल करने वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है जो तौबा कबूल करे। आगे कुल नहबितु मिन्हा जमिया, यहाँ ये जो जुमला फरमाया गया कि हमने कहा कि इहबितु उतर जाओ बुलंदी से पस्ती की तरफ सारे के सारे। अब सारे के सारे से क्या मुराद है? उस वक़्त तो कोई इतनी सारी मखलूक़ात थी नहीं, उस वक़्त तो सिर्फ इंसान थे या जिन्नात थे या फिर फरिश्ते थे, और तो कोई था ही नहीं। तो उलमा इसके जवाब देते हैं कि इन्हीं तीन को ही अल्लाह ने फरमाया, और इन तीन के ज़रिए से ये भी पैगाम दिया कि आगे जितनी भी मखलूक़ात आ रही हैं वो सारी भी इसमें शामिल हैं कि सारी की सारी अब दुनिया में रहेंगी, जन्नत में नहीं रहेंगी। जन्नत से अब ये ज़मीन की तरफ चले गए हैं। अब एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने पीछे भी तो जिक्र फरमाया, कुल नहबितु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, हमने कहा कि उतर जाओ बुलंदी से पस्ती की तरफ, और बाद तुम में से एक दूसरे के क्या होंगे, दुश्मन होंगे।
वहाँ भी अल्लाह ने जिक्र किया, फिर यहाँ पे भी अल्लाह ने जिक्र किया। तो ये दो जुमले एक साथ तकरार के साथ अल्लाह ने जिक्र फरमाया, तो इसका क्या मतलब है? तो उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहला वाला जो कुलना बितू है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने सज़ा के तौर पर फरमाया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया तो अल्लाह ने सज़ा के तौर पर फरमाया कि अब तुम उतर जाओ, अब तुम मेरी जन्नत से चले जाओ और ज़मीन की तरफ चले जाओ, और अब तुम दोनों जो हो ना, यानी कि शैतान इब्लीस और तुम इंसान, आपस में एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। और फिर ये भी फरमाया कि यानी इसमें ये चीज़ भी आ सकती है कि इंसान भी इंसान का दुश्मन होगा। तो ये जवाब तो ये हो गया कि अल्लाह ने इस पहले वाले का जो जवाब दिया है वो ये दिया है कि ये सज़ा के तौर पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। ये जो दूसरा है कुलना बितू मिन्हा जमीआ, इसका जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्योंकि पहले जिक्र फरमा दिया था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, फिल अर्ज़ी ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अब तो उन्होंने तौबा कर ली, तौबा उसकी कबूल भी हो गई है, लेकिन चूँकि मैंने इन हजरात को, इंसान को मैंने बनाया ही ज़मीन पर रहने के लिए था, अपना नाइब बनाकर ज़मीन पर भेजना था। तो अब जब तौबा भी कबूल हो गई तो लेकिन मैंने इसको भेजना फिर भी कहाँ है? ज़मीन पर ही है, ताकि ये ज़मीन पर जाकर मेरी इत्तिबा करे और लोगों को मेरी पैरवी का हुक्म देता रहे। आगे खुद अल्लाह ने फरमा दिया फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, पर जिसके पास मेरी तरफ से हिदायत आ गई और जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा कर ली तो फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर ना उस पर कोई गम होगा और ना ही कोई हिज़न होगा। अच्छा, यहाँ पर खौफ और हिज़न ये दो जुमले अल्लाह ने जिक्र किए हैं। खौफ अलग चीज़ है और हिज़न अलग चीज़ है। खौफ कहा जाता है मुस्तकबिल में कोई चीज़ सामने हो हमारे, जैसे मौत का खौफ, जैसे किसी हादसे का खौफ। और हिज़न कहते हैं मादी के किसी अमल पर, जैसे मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, इस चीज़ का मुझे क्या है? गम है, हिज़न है। या मेरा मादी के अंदर बटवा छिन गया था, या मेरी बाइक छिन गई थी। एक मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि मादी में मुझसे ये काम हो गया था, इसका मुझे क्या है? अफसोस है, गम है, हिज़न है। तो हिज़न कहा जाता है मादी के किसी अमल को अगर हुआ हो तो उस पर, और खौफ कहते हैं मुस्तकबिल के किसी अमल पर अगर कोई डर हो तो ये भी बात हो गई। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी मेरी दी हुई हिदायत पर अमल करेगा और मेरी हिदायत पर अमल करते हुए मेरी इत्तिबा यानी मेरे रसूल की इत्तिबा करने की कोशिश करेगा तो उस पर फिर ना मुस्तकबिल में कोई खौफ होगा और नमाजी का फिर उस पर कोई गम होगा। और वल्लदीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और फरमाया कि यही वो लोग हैं जो इनकार भी करते हैं और झुटलाते भी हैं हमारी आयत को। यानी जिसने भी हमारी आयत को, जो मैंने पीछे आयत बयान की हैं, जिसमें मैंने मुनाफिकीन का जिक्र किया है, जिसमें मैंने मोमिनीन का जिक्र किया और जिसमें मैंने काफिरों का जिक्र किया, और फिर मैंने ये भी बताया कि आप लोगों को मैंने इस दुनिया में भेजा क्यों है, जिसने भी मेरी इन आयत से इनकार किया और इन आयत को झुटलाया तो उलाइका अस्हाबुन नार, फिर ये क्या होंगे? जहन्नम वाले लोग होंगे। ये क्या होंगे? आग वाले लोग होंगे, और ये हमेशा फिर उसी में रहेंगे। देखें, एक होता है खालिदून और एक होता है सूरह हुमज़ा के अंदर आपने पढ़ा होगा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, एक है अखलद से और एक है खालिद से। खालिदून और अखलदा ये अलग अलग है, तर्जुमा इसका अलग अलग है। खालिदून कहते हैं कि हमेशा उसमें रहेगा बताते खुद तू, और अखलदा कहते हैं कि तेरे पास कोई चीज़ रहेगी। यहसबु अन्ना मालहु, उसने गुमान किया कि इसका जो माल है वो उसके पास हमेशा रहेगा। किसी चीज़ का किसी के पास हमेशा रहना उसको कहा जाता है अखलद, और ख़ुद इंसान का किसी मकाम में किसी जगह में रहना उसको कहा जाता है खालिद। खालिदून हुम फीहा खालिदून, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा? जहन्नम में ये लोग रहें।